Hello everyone, welcome to Legal Update. Today's topic for discussion is scope of stalking under BNS. Why news? Recently, the Himachal Pradesh High Court in Krishna Kumar Kasana versus State of Himachal Pradesh and another held that merely taking photographs of a woman does not satisfy the definition of stalking under Section 78 of the Bharatiya Nyaya Sanhita and granted anticipatory bail to the accused. Background of the case: the petitioner, an industrialist, was accused of taking photographs and videos of a woman of a regional officer of Himachal Pradesh State Pollution Control Board. An FIR was registered against him under Section 221, 224, 351 Clause 2 and 78 of the BNS 2023. The informant alleged that the petitioner tried to intimidate him, even attempted to hit his car and was pressurizing him to grant undue favors by targeting his wife. The petitioner, however, claimed that the FIR was retaliatory as he filed complaint of bribery against the officer. The trial court rejected anticipatory bail, leading to the matter being placed before the High Court. What were the court observations? Justice Rakesh Kanthla observed that Section 78 of BNS punishes a person who follows a woman and contacts her repeatedly to foster personal interaction despite her disinterest, or monitors her use of internet, email, or other electronic communication. In this case, the allegations only indicated that photographs of the complainant's wife were taken. Also, prima facie, these allegations do not satisfy the definition of stalking. Hence, thus, anticipatory bail was granted. Provisions involved are Section 78 of Bharatiya Nyaya Sanhita, which covers following a woman, contacting her repeatedly despite disinterest, or monitoring her online activities. This offence is punishable with imprisonment up to 3 years and fine. Second, Section 221 of the BNS, which deals with obstructing a public servant in discharge of duty. Third, Section 224 of BNS, which deals with threat of injury to a public servant. Last, Section 351 Clause 2 of BNS, which deals with criminal intimidation with threat to reputation or property. It's the time for practice question. Under Section 78 of BNS, stalking includes: first, following a woman and contacting her despite disinterest. Second, monitoring her online activities. Third, taking her photographs in public once. Which is correct? Option A, only one. Option B, only two. Option C, 1 and 2. And option D, all of the above. Pin down your answers in the comment section below. लीगल अपडेट में स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है बीएनएस के तहत पीछा करने का दायरा। आइए सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने कृष्ण कुमार कसाना बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले में यह माना कि किसी महिला की केवल तस्वीरें लेना भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 78 के तहत पीछा करने की परिभाषा को पूरा नहीं करता है और आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी। आइए अब जानते हैं मामले की पृष्ठभूमि को। याचिकाकर्ता, जो एक उद्योगपति है, पर हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक क्षेत्रीय अधिकारी की पत्नी की तस्वीरें और वीडियो लेने का आरोप लगाया गया था। उसके खिलाफ धारा 221 लोक सेवक के काम में बाधा डालना, 224 लोक सेवक को चोट पहुंचाने की धमकी, 351(2) आपराधिक धमकी और बीएनएस 2023 की धारा 78 पीछा करना के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता ने उसे धमकाने की कोशिश की, उसकी कार को टक्कर मारने की भी कोशिश की और उसकी पत्नी को निशाना बनाकर उस पर अनुचित लाभ पहुंचाने का दबाव बना रहा था। हालांकि याचिकाकर्ता ने दावा किया कि एफआईआर प्रतिशोधात्मक थी क्योंकि उसने अधिकारी के खिलाफ रिश्वतखोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। ट्रायल कोर्ट ने अग्रिम जमानत खारिज कर दी, जिसके बाद मामला उच्च न्यायालय के समक्ष रखा गया। आइए अब नजर डालते हैं न्यायालय की टिप्पणियों पर। न्यायमूर्ति राकेश कैंथला ने कहा कि धारा 78 बीएनएस उस व्यक्ति को दंडित करती है जो किसी महिला का पीछा करता है और उसकी अरुचि के बावजूद व्यक्तिगत संपर्क बढ़ाने के लिए उससे बार बार संपर्क करता है या उसके इंटरनेट, ईमेल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार के उपयोग की निगरानी करता है। इस मामले में आरोपों में केवल यह संकेत दिया गया था कि शिकायतकर्ता की पत्नी की तस्वीरें ली गई थी। साथ ही प्रथम दृष्टया ये आरोप पीछा करने की परिभाषा को पूरा नहीं करते हैं। इस प्रकार अग्रिम जमानत प्रदान की गई। आइए अब नजर डालते हैं शामिल प्रावधानों पर। भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 78 पीछा करना। इसमें किसी महिला का पीछा करना, उसकी रुचि न होने के बावजूद उससे बार बार संपर्क करना या उसकी ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखना शामिल है। पहली बार अपराध करने पर 3 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। धारा 221 बीएनएस किसी लोक सेवक के कर्तव्य निर्वहन में बाधा डालना। धारा 224 बीएनएस लोक सेवक को चोट पहुंचाने की धमकी। धारा 351(2) बीएनएस प्रतिष्ठा या संपत्ति को खतरे के साथ आपराधिक धमकी। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न।
धारा 78 बीएनएस के तहत पीछा करने में निम्नलिखित शामिल हैं। विकल्प ए, किसी महिला का पीछा करना और उसकी रुचि न होने के बावजूद उससे संपर्क करना। दूसरा, उसकी ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखना। तीसरा, एक बार सार्वजनिक रूप से उसकी तस्वीरें लेना। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।